think all of us are here. मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज अपना अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें. आरती जी, कृपा शंकर जी, शफीक जी एंड फादर बीजो. Thank you so much. तो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, ये पैनल क्या है और इसके बारे में मुझे आप 2 मिनट दें तो मैं आप लोगों से बात करूं, एंड देन आई विल hand it over to Ramakrishnan sir, who is also here with us and who will be moderating this panel today. So this panel has been named Radio During the Pandemic, Responsive, Reliable, Resilient. इस पैनल का हमने ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि हमने देखा है कि 2021 में जब हमने इतने मुश्किल समय में जो काम सामुदायिक रेडियो ने किया है, वो ना केवल पहले कभी देखने सुनने को मिला है, बल्कि वो इतना महत्वपूर्ण रहा है कि देश भर से सभी लोगों ने उसको सराहा है. आपने अपने समुदाय से, अपने लोगों से ही सुना है कि उन्होंने आपके लिए जो रेडियो का जो रोल रहा है उसमें उन्होंने क्या बोला है. और बाकी हम क्योंकि स्मार्ट बहुत से आप सभी कम्युनिटी रेडियोज जानते हैं कि हम आपके साथ अलग अलग मुद्दों पर काम करते रहते हैं, और 2020 और 2021 में हमने बहुत से रेडियो स्टेशंस के साथ मिलकर पैंडेमिक के समय पर खासकर जो काम किया है, उसमें हमने भी देखा कि जब हमारे एक प्रोजेक्ट का जिसमें हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स में जब हम 150 से ज्यादा स्टेशंस के साथ हमने जिसमें पैन इंडिया काम किया था, उसकी जब एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन थर्ड पार्टी की गई तो उससे साफ साफ पता चला कि रेडियो के द्वारा जो काम किया गया उसकी वजह से 8% बढ़ोतरी हुई लोगों के बीच में इस बारे में, कोविड के बारे में जानने समझने की शक्ति में. और दूसरी चीज कि उनको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और जो हैंड हाइजीन का प्रयोग करना चाहिए, इन सब की समझ में लगभग 8% की बढ़ोतरी देखी गई. I'll quickly translate it in English. During the work that we've done, Smart has done with community radios during the pandemic for the last 2 years, an independent study was carried out on one of our endeavors, which found that wherever community radios had taken up the initiative to talk about COVID and COVID appropriate behaviors, an 8% increase in understanding and change in behavior was seen among the community members. And today, as you all know, that this is a day where we all come together and not only to celebrate the vision and the passion that we all have for radio and for this medium, but also to learn from each other and also to understand that what is it our own peers are doing and how can we bring those learnings into our own practices and make the situation for our communities a much, much better one. So for that, today we have this panel which will be moderated by Mr. N. Ramakrishnan, who is the Executive Director of IdeoSync Media Combined, which is a communication and social change organization with extensive experience in community media. I'll speak just a little bit about Dr. Ramakrishnan, although most of you know him very well and he needs no introduction as far as the sector of community radio is concerned. Over the last 2 decades, Mr. Ramakrishnan has been deeply involved in the development and implementation of the community radio policy in India. Besides working directly on the establishment of over a dozen CR stations across the country, he has also trained more than 100 community radio stations across India and South Asia in issues ranging from low-cost broadcast technologies, program production, sustainability practices, and community-driven management practices. A director and a cinematographer and a radio producer, Mr. Ramakrishnan also teaches courses on radio, voice, and journalism and television at the Jindal School of Journalism and Communication at OP Jindal Global University, Sonipat. Sir, I would like you to kindly take the floor from here and take on the discussion. Thank you so much. So, good afternoon, everyone. I'm delighted to be here at another edition of the Radio Festival. And as always, it's wonderful to meet and talk to India's community radio stations
and to be able to help them showcase the vitally important work that they do to inform communities at the grassroots in urban and rural areas, especially in times of disaster and in crises. A couple of years ago, in the wake of the unprecedented floods in the state of Kerala, Father Bijo will remember this, I had the opportunity to work with UNESCO to assess not only how the stations coped with disaster, but how they played a central role in coordinating relief activities and in connecting people within their communities to each other. The CR stations in that state went clearly over and beyond their responsibilities as local radio stations to actively collect and distribute rations and medicines and provide relief in their areas. CR stations in Uttarakhand, Bihar and Odisha have likewise done sterling work when their states have been hit by cloudbursts, floods, cyclones, every manner of natural disaster. In many ways, they've become the central clearinghouses of information for their communities during such times. But the COVID pandemic was a different kind of public health challenge, a whole different order. I think it was something none of them had experienced before at quite this scale, and none of them was quite prepared to deal with it. So in mid-2021, about the middle of the second wave in India, we brought several CR stations together online to talk about how COVID had impacted them. About how COVID had impacted them and how they were addressing both the challenges to their functioning caused by COVID and the challenges of giving correct and verified information about COVID to their communities. So out of this, 5 key issues stood out. 1, despite severe constraints on their revenues and income caused by the lockdowns and by the drop in commercial activity in their areas, many stations still managed to stay on air through sheer grit and dedicated volunteers. As I mentioned, many of them had established processes to not only continue broadcasting, but to collect and distribute rations and medicines to the needy in their areas. 2, despite being at the grassroots and the front line of the battle against COVID, as it were, many of them had to fight to be recognized by health authorities as local information providers. I think this is a real challenge and it's something we've been struggling with for a while. And this meant CR volunteers struggled to physically reach their stations and were not really included in empanelment processes for the media. That they continued despite this is a testament to their resilience. 3, COVID underlined the important role of information verification and fake news busting. Because in the case of many CR stations, this became central to the content they were sharing, giving correct information about COVID, busting rumors about what was happening in their area. 4, the pandemic exposed their lack of preparation to address public health emergencies, and I think emphasized the need to create a structured understanding of both public health issues and systems, as well as the specifics of COVID itself in community radio stations and their teams. And lastly, the pivot to online tools and using things like Zoom, which we take so much for granted now, especially in terms of managing the broadcasting in their CR stations remotely, it was a painful transition for many stations. But several CR stations adapted to this, and they showed exemplary innovation in staying on air, even sometimes when the team's workers were not able to come to the station. But that's enough from me. To talk about this and how the CR stations were responsive, reliable and resilient during the pandemic, let me welcome our panelists for today's discussion from 4 of India's most well-known community radio stations. We have Aarti Bisht from Radio Hevalwani, Uttarakhand. We have Father Bijo from Radio Matoliye in Kerala. We have Mr. Kripashankar Srivastava from Radio Rimjim in Bihar. And we have S.K. Abdul Shafiq from Radio Swaraj in Odisha. Namaskar, welcome. आप सभी का आज इस सत्र में स्वागत है. And for ease of conversation, I will conduct this conversation in English and Hindi, and I will look for assistance to Nitika and others to help translate where required. And we will do our best to summarize and translate as we go. So, समय सीमित है, we have limited amounts of time and I'd like to make the best use of it. So, please keep your responses short and to the point to the greatest extent possible so that at the end we also have some time for question and answers. So, let me start by asking all of you and then a general question, and then I will ask you to speak in turn. Can you tell me during COVID 2 actions that each of your stations had to take to address the challenges that you faced because of COVID and the pandemic? क्या आप 2 ऐसे प्रक्रिया या रणनीति बता सकते हैं हमें जिनको आपने अपनाया कोविड के समय इस चुनौती का सामना करने के लिए? तो शुरू करेंगे हम कृपाशंकर जी के साथ. कृपाशंकर जी, संक्षिप्त में 2 बिंदु.
हम जो है सीमित समय लेंगे। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जब कोविड का समय आया था उसी समय बिहार में जो है बाढ़ आ गया था, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि जो देश विदेश प्रदेश में लोग रहते हैं उनका हुजूम जो है आना बिहार में शुरू हो गया। तो कोरोना के साथ बाढ़ भी था, बाहरी लोगों का प्रवेश भी बिहार में था, और कोरोना जो था अपने समय पर था। ऐसी स्थिति में सामुदायिक रेडियो होने के नाते हमारा यह नैतिक जिम्मेवारी था कि हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही है वहाँ के लोगों को हम कैसे बचाएं, उनके स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, ताकि जन जन तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। वैसे रेडियो रिमझिम की स्थापना जो है लोगों के जान बचाने के लिए ही किया गया है। यह प्रथम लक्ष्य रहा और प्राथमिकता रहा। चाहे वो आकाशीय बिजली गिरना हो, चाहे बारिश की सूचना हो, मौसम विभाग से हम लोगों ने समय समय पर सूचना एकत्र करके 13 वर्षों से यह कार्य कर रहा है। वैसे कोरोना काल 2021 में हमने तो बहुत सारा काम किया। सबसे पहला लोगों को सूचना पहुंचाना, और जिस समय कोरोना अपने चरम पर था, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय जिला प्रशासन के अनुमति से गोपालगंज के 2 अनुमंडल 14 ब्लॉक में जाकर राशन, मास्क और सैनिटाइज का भी वितरण हम लोगों ने किया। कोरोना के दौरान बिहार के गोपालगंज जिले में बाढ़ आ गई थी, स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, एक साथ जमा नहीं होना था, और उसी समय वैक्सीन शुरू करने की बातें भी हो रही थी। लेकिन बाढ़ के वजह से लोग एक जगह इकट्ठा भी न हो, यह हमारा पूरा जिम्मेवारी था। गांव का गांव पानी में डूब गया था। लोग जो थे अपने पशुओं को छोड़कर भागना शुरू कर दिए थे। उस आपदा की स्थिति में कम्युनिटी रेडियो ने गोपालगंज जिले के आईएएस अफसर और कलेक्टर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से हमने सहयोग मांगा। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को राशन पहुंचना चाहिए। हमने बताया कि यह स्थिति जो है नहीं है, गोपालगंज में राशन नहीं मिल पा रहा है। एक गांव का हमने दौरा किया। स्थानीय स्तर पर लोगों ने बताया कि डीलर जो है वह जो है राशन नहीं दे रहा है। हमारे जो आईएएस अफसर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कम्युनिटी रेडियो के बातों को बहुत गंभीरता से लिया और 48 घंटे के अंदर इंक्वायरी बैठा दिया, जिसका वीडियो हमारे पास है, और उन्होंने लोगों को त्वरित गति से अनाज पहुंचाया। 2021 में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो अफवाहों के साथ हमारा जंग शुरू हो गया। कोई कहता था कुछ, कोई कहता था कुछ, लेकिन बिहार सरकार के और स्मार्ट के सहयोग से हम लोगों ने एक कैंपेन कर दिखाएगा बिहार शुरू किया, और श्रोताओं के बीच जाकर जमीनी स्तर पर टीका लेने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया। और इसमें स्मार्ट एनजीओ ने बड़ा सहयोग किया, और बिहार सरकार लक्ष्य रखा था कि 8 करोड़ लोगों को दिसंबर तक बिहार में टीकाकरण करना है। लेकिन पूरे बिहार के 38 जिले में गोपालगंज टॉप 5 में रहा टीका दिलवाने में, चाहे वह पहला डोज हो या दूसरा डोज हो। हमारे कार्यों को देखते हुए जिला प्रशासन ने हमें प्रशस्ति पत्र दिया कम्युनिटी रेडियो को कि आप केवल स्टूडियो में नहीं, लोगों के बीच जाकर कार्य किए हैं। स्मार्ट, यूनिसेफ, CR जैसे संगठन को हम धन्यवाद इस मंच के माध्यम से देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें कोरोना के दौरान आर्थिक सहयोग किया। इसके अलावा रेडियो रिमझिम ने कोरोना के दौरान बाढ़ जैसी आपदा आ जाने से उसके लिए भी जंग अपना शुरू किया, और शिक्षा, स्वास्थ्य और कोरोना के जो मिथ्या और भ्रमित बातें थी दूर करने के लिए पूरे समुदाय को एक मंच पर लाया। हम NCERT को भी धन्यवाद देंगे कि कोरोना काल में हमें ऑडियो दिया,
और ताकि बच्चों का पढ़ाई का भी नुकसान न हो, और हमने उसका प्रसारण किया। स्थानीय स्तर के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर ऑन एयर कार्यक्रम चलाया, जिसमें श्रोता अपने बीमारियों के बारे में, कोरोना के बारे में डायरेक्ट बात करते थे। उसी समय मेंटल हेल्थ की चर्चा हुई, मानसिक स्वास्थ्य की, और उसको हम लोग कैसे ठीक करें, इसके लिए हमने माई गवर्नमेंट कार्यक्रम के दौरान लोगों को इस कार्यक्रम को प्रसारित किया। मिथक बातों को तोड़ने के लिए PIB के जरिए जो जो बातें दी जाती थी उसे प्रसारित किया, और गलत बातों को तोड़ करने के लिए हमने लगातार प्रसारण किया। जैसे गलत बात था, नाक में नींबू डालिए तो कोरोना भाग जाएगा, मास्क पहनिएगा तो सांस फूलेगा, पॉजिटिव होने के बाद भी सरकार जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती कर रहा है। इन सब बातों के लिए हम लोगों ने लगातार, जो चिकित्सक थे, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके बातों को रेडियो रिमझिम के माध्यम से हम लोगों ने प्रसारित किया। यही नहीं, डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के डॉक्टर हैं, उनका ऑडियो जो है हमने प्रसारित किया, और डॉक्टर BK पॉल जो नीति आयोग के मेंबर हैं, उनका भी वार्ता जो 15 से 30 मिनट का था, हमने लगातार प्रसारित किया कि वैक्सीन लेना क्यों जरूरी है। यूनिसेफ के गाने को जो कई भाषाओं में है, उसे हमने लगातार चलाया, और गांव-गांव में जाकर लोगों को मास्क पहनना और वैक्सीन लेने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया। कोरोना के दौरान मेंटल हेल्थ जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए डॉक्टर का बातचीत जो है हमने प्रसारित किया। और सबसे अच्छी बात है कि जो जुडिशियल है, उसके सचिव जो थे डॉक्टर अंबिका प्रसाद चौधरी, जो जज हैं और लोक अदालत के सचिव हैं, उन्होंने हमें सहयोग किया और एक टास्क फोर्स बनवाया जुडिशियल ने। और बहुत बढ़िया कृपाशंकर जी, यहीं आपको रोकूंगा। आपने काफी विस्तार से हमें ये चीज बताई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और लोगों से भी हम सुने, तो अभी थोड़ा आपको मैं यहाँ रोकूंगा। आरती जी, आप बताएं कि इन चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया। सभी को नमस्कार, और उम्मीद है सभी एक दूसरे से परिचित होंगे। चुनौतियां तो बहुत सारी आई, और काम सभी रेडियो स्टेशन ने पूरे देश में लगभग एक जैसा ही किया है। हाँ, क्षेत्रीय कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद किसी ने अलग अलग तरीके से की होंगी। तो जैसा कि कृपाशंकर जी ने भी बताया कि प्रवासी लोग उस समय लगातार मतलब अपने अपने घरों को लौट रहे थे, तो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये थी कि भाई वो घर जाएं तो वो रहेंगे कहाँ, क्योंकि 7 दिन या 14 दिन के लिए उनको क्वारंटीन कर दिया जा रहा था, और अपने घर में, अपने जिले में भी नहीं, मतलब आपको बॉर्डर पे ही क्वारंटीन कर दिया जा रहा था। तो वो बड़ी चुनौती थी लोगों के लिए कि कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे, कैसी, अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, मतलब वैसे ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं आप, तो फिर आप कहाँ रुकेंगे। तो ये सारी जानकारी हमने कोशिश की कि लोगों तक पहुंचाएं। हम लोग इंटरनेट के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश की कि जो लोग प्रवासी भाई जो बाहर रहते हैं, अपने परिवार को लेकर घर आ रहे हैं, तो उनको हम कैसे बताएं कि आप कहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, आप कहाँ पे, आपको कितने दिन पहले घर आना है, और उसके बाद आपको कहाँ क्वारंटीन कर दिया जाएगा, या अगर आप आते हैं तो जगह जगह गांव-गांव में क्वारंटीन सेंटर कहाँ कहाँ बने हुए हैं। ये सारी जानकारियां हमने उनके साथ साझा की। दूसरा, बहुत सारी चीजें थी जो लोग उस समय सरकार के साथ में या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ में एक तरह से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे कि कैसे पूछे, क्योंकि ऑफिसेज और जितने भी डिपार्टमेंट्स थे सारे लोगों के लिए बंद थे। तो उस समय हमने लोगों के बीच में और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में हमने एक तरह से संवाद कायम करने की कोशिश की, और जाना तो किसी का भी अलाउड नहीं था, लेकिन हमारे पास कॉन्टैक्ट थे, लिंक थे, तो लोगों के जो भी सवाल थे वो हमें रेडियो पे मिलते थे, और हम वही सवाल अपने विभाग से जुड़े, संबंधित विभाग से या एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी अधिकारी हैं उनसे लेकर के लोगों को देते थे। तो इस तरह से लोगों की वो जो समस्या थी कि अब अधिकारियों से मिलना था या कागज जमा करना था तो कैसे करें, ये सारी चीजें लोगों, बैंक संबंधी जानकारियां दी कि बैंक अभी बंद हैं। शुरुआत में तो खैर सब कुछ बंद था, लेकिन सेकेंड वेव में जब सेकेंड वेव आई तो तब हमने ये सारी जानकारियां लोगों को दी। इसके अलावा जो वो के साथ में बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनके परिवार में एक एक दो दो व्यक्ति मतलब कोरोना की जंग हार गए एक तरह से, और वो जीवित नहीं रह पाए, तो उन लोगों की और उनकी घर में आजीविका का भी कोई साधन नहीं, क्योंकि जो
एक तरह से घर को चलाता था, आर्थिक ही चलाता था, वही व्यक्ति अगर नहीं है तो फिर घर कैसे चलेगा। तो बहुत सारे सामाजिक संगठन ऐसे थे जो राशन वितरित कर रहे थे या लोगों को मदद कर रहे थे किसी तरह से। तो हमने उनके थ्रू उन लोगों की जानकारी दी जो कि नीडी लोग हैं, क्योंकि इस दौरान ऐसा भी नहीं है कि जरूरतमंद लोगों को ही वो मिला। बहुत सारे लोगों ने सोचा हमें कोरोना हो गया तो हमें भी दे दो, क्योंकि उनको लगा सरकार दे रही है। तो वो मतलब अच्छे हैं, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन नीडी जो लोग हैं उनको अगर सही मतलब राशन मिले या और जो सामान वितरित किए जा रहे थे वो मिले, तो उनकी सही पहुंच हमने जो सामाजिक संस्थाएं थी उनसे करवाई। अब हम तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते थे, क्योंकि भी कम्युनिटी रेडियो तो खुद ही एक तरह से सेल्फ मतलब एक तरह से खुद से लड़ रहा है कि हम इस दौरान कैसे आर्थिकी अपनी संभालें, या लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं स्वयंसेवी हैं या जो रिपोर्टर्स हैं वो हैं, तो उनको कम से कम आने जाने का खर्चा भी कैसे दें। तो इस दौरान हमने जो हमारे रिपोर्टर्स थे, जितने हमारी टीम थी, सबका जो थोड़ा बहुत हम उनको आने जाने का खर्चा देते थे उस पर हमने 50% कर दिया था कि आपको 50% ही दे पाएंगे। आप ऑफिस में आइए, आप घर में काम कीजिए, आप स्क्रिप्ट लिखिए, आप घर से रिकॉर्डिंग कीजिए। रिकॉर्डर सबको फील्ड में अपने घरों में पहुंचा दिए थे। और ऐसी भी नौबत आई कि स्टेशन मतलब बंद नहीं हुआ, प्रसारण बंद नहीं हुआ, लेकिन स्टेशन में ही अगर एक व्यक्ति को, जैसे यहीं पर एक व्यक्ति को कोरोना हो गया था, तो सब लोग फिर स्टेशन नहीं आए। सिर्फ एक व्यक्ति ने पूरा 15 दिन पूरा ब्रॉडकास्ट संभाला, और वो बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 3 टाइम का ब्रॉडकास्ट करना, और 9 घंटे का ब्रॉडकास्ट हम लोग करते हैं, तो 9 घंटे का ब्रॉडकास्ट एक अकेले व्यक्ति के लिए करना वो थोड़ा सा मुश्किल था। और फिर ये भी था कि लोग बोर भी हो जाते हैं एक ही व्यक्ति को सुन के, तो वो चैलेंजिंग था। इसलिए हम लोग घर से फोन पे रिकॉर्डिंग करके, भले ही वो आवाज उसमें थोड़ा सा खराब होगी, वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग वाला वो नहीं होगा, लेकिन हमने इस तरह से उसको किया। बाकी उसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, काफी सारे आर्थिकी का तो आया ही है, इसके साथ साथ लोगों के साथ जुड़ाव का जो आया, तो उसके लिए हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, उसके लिए हमने फोन कॉल्स का इस्तेमाल किया। हम किसी अधिकारी के पास, हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे थे, तो कॉन्टेक्ट के कुछ साथी है रेडियो स्टेशन का संचालन करते हैं, तो But let's come to you, Father Bijo. What are the challenges that Radio Matuli faced, and how did you deal with them? Yes. Thank you for the opportunity. First of all, I take this opportunity to thank SMART, UNESCO, and especially Ramakrishnan sir and all my colleagues. And this was really a great challenge for us, just like all the people faced. See, actually, you would like to know that where we are situated, because we are on the top hills of Wayanad and the Western Ghats. Here, there are 8 lakhs people, 8,47,000 people, but among that 1.5 lakhs people are from the tribal background, and most of them are living nearby the forest or inside the forest. So that was the most important thing, that we had to deal with those people's problems. In the beginning, thank God there was a collector, district collector, who was also a doctor. Therefore, the doctor used to go to the places where the tribal people were there, and the doctor came to know that all the people are connected with radio station. Then directly she rushed to our radio station and she asked me that, Father, only one thing, that we should not stop broadcasting radio, the jingles and everything. So in connection with National Health Mission, they have already deputed one doctor, the district information officer, Dr. Santosh, was deputed to our radio station, and 3 days in a week he is supposed to be here in our radio station, and 3 days in the central office of National Health Mission. So he was supposed to give all the talks and all the information to these people, and there were people from a tribal background. We used to translate all the jingles and the messages to those people, and happy to say that Modi ji, Prime Minister, has already selected one person from our radio station as one of the best COVID warrior during this season, as from the community radio sector. And onlymyhealth.com also selected her as the best health hero award has been given to her.
and these people are from the tribal background. And the thing was that there are a lot of myths from the tribal people as well as for the common people, and people thought that nothing will be happening to us, and there was also hesitation for the vaccination. But we had to break all the myths and all by continuous effort and jingles and all. Even the staff members were in a difficult situation to come out to the radio station, and we had to divide all entire group into 2 sections, and one section stays here for 1 week and the next section stays here for the next week. At the same time, as you know that this place is something in an interior place. At the same time, this is a place where we can access to all the facilities. Therefore, we here in our district, there is no medical college. Nearest medical college is 100 kilometers away from here. Either we need to go to the Karnataka, Mysore, or need to go to the Calicut. The most important problem was there. If anything happens here, no place for them to accommodate the hospital. So the place where I stay has to be given for the primary facilitation center for the COVID patients. 150 patients were accommodated in the same place where we stayed. So automatically that accommodation building has changed into a hospital. All the facilities were there, and we started providing radio sets to the people. More than 1,000 radio sets were distributed to the people. At the same time, we also distributed some of the TV sets and all. By distributing these things, automatically people started listening. I think in the history of Radio Matali, this is the time when more people listen to a radio station. At the same time, National Health Mission already asked the people to install our mobile application, so that even if they don't have the radio sets, they can listen to radio sets through this mobile application. So very thank you say that National Health Mission of Wayanad district has already done well in collaboration with us to disseminate information to the public people. At the same time, all the staff members of this community radio station has given vaccination at the first time when it was given to the doctors and nurses, considering that we are frontline worker. That was a great opportunity. At the same time, that was an appreciation for us to do something. Then we had to stay at home, and co-creation methods were started, and we also had to share some of the programs. At the same time, we adopted lot of social service activities to the public, general public, in collaboration with similar NGOs and our mother NGO. At the same time, with kind-hearted people. I think time is already over. I'll be coming back. Oh, that's right. Thank you so much. I think one of the best things that happened in Kerala is that the Kerala CR stations have been able to network very efficiently with the Kerala State Disaster Management Agency and with other government departments. So I think that has been very supportive during this time. Abdul Shafiq साहब, आप बता सकते हैं रेडियो स्वराज में आपको कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सभी को नमस्ते। इस अवसर पर जहां कम्युनिटी रेडियो के बारे में डिस्कशन हो रही है और कम्युनिटी रेडियो के जो काम हुई है कोविड के सिचुएशन में उस पर रिपोर्टिंग हो रही है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और कम्युनिटी रेडियो को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को बहुत प्रेरणादायी है और इससे प्रेरणा मिलती है और उसको लेके हम आगे काम भी कर सकते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर रामकृष्ण जी ने बताया कि नहीं, 2 मुद्दा को लेके हम बात कर रहा है, तो बहुत सारा मुद्दा तो है काम करने के लिए, उससे हमने 2 मुद्दे पे बात करेंगे जरूर। उसके पहले हम उड़ीसा के सिचुएशन और हम जहाँ हैं उसके सिचुएशन के बारे में 1-2 लाइन बताएंगे। तो उड़ीसा का जो सिचुएशन है उसमें तो बहुत ज्यादातर माइग्रेशन भी है, क्योंकि गांव के लोग जो हैं वो कामकाज नहीं है, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं, और जो माइग्रेट करते हैं वो बहुत सारे लोग जाते हैं गुजरात जाते हैं, बहुत सारे लोग केरल जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं और इसके बाहर भी दिल्ली जाते हैं। तो ये एक सिचुएशन था उस टाइम में कि जो लोग माइग्रेट कर रहे थे और वो लौट रहे थे, तो उनको कैसे थैथान किया जाए, ये एक मुद्दा था।
और दूसरा था कि कोविड तो नया आया था, लेकिन गांव के लोग जो इलिटरेट थे, इग्नोरेंट थे उसके बारे में, तो उनको पता ही नहीं था, क्योंकि ये तो फ्लू टाइप का होता है। तो लोग थोड़ा केयरलेस हो जाते थे कि हाँ ये तो फ्लू है, ठंडा है, बुखार है, ये छूट जाएगा, और वो डॉक्टर के पास जाते नहीं थे, वो मेडिसिन स्टोर को जाते थे, 1-2 गोली लाते थे, उसमें ठीक नहीं होता था, तो वो बड़े परेशानी दिक्कत होता था, और उसको देख के हमको लगा कि इस पे कुछ काम करना चाहिए। थर्ड थिंग होता है कि उस टाइम में बहुत मीथ सुनने मिला, लोगों बहुत सारा अफवाह उठाए, बात बोले कि ऐसा करो, ये करने से ठीक हो जाएगा, गर्म पानी पियो, वो काढ़ा पियो, ये करो वो करो, ठीक हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं, ऐसा एक अफवाह आ गया, उसमें लोग भी थोड़ा बायस्ड हो गए थे, वो भी एक बड़ा भयानक सिचुएशन था हमारे एरिया में। और सबसे बड़ी भयानक थी कि जब सरकार ने बोले कि नहीं कोविड के जो वैक्सीनेशन है उसको करना है, तो लोग थोड़ा डरते थे जाने के लिए, और उसका 2 वजह था। एक तो लोग डरते थे वैक्सीन लेने के लिए, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, ये थोड़ा था, अपने दिल में डर था। और दूसरा बात था कि वहाँ से जो हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल जहाँ कोविड वैक्सीनेशन किया जाता है, वो थोड़ा दूर होता था, इसलिए लोग जाना चाहते नहीं थे। तो ये सारा चीज जो हमारे सामने आ गया चैलेंजेस के हिसाब में, हम उसको 2 हिस्से में बांट दिए। एक चैलेंजेस तो था प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे हो पाएगा, क्योंकि ये जैसे बढ़ता है, फैलता है, और ओडिशा में तो बहुत जल्दी बढ़ता था, तो उसको कैसा फैलाने से रोका जाए, तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होगा उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। और अगर प्रिवेंटिव मेजर के साथ साथ क्यूरेटिव मेजर के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहिए, तो इसीलिए हम उसको किए कि नहीं, थोड़ा अवेयरनेस भी होना चाहिए और थोड़ा डायरेक्ट एक्शन भी होना चाहिए, ताकि लोगों थोड़ा सेफ रह पाएंगे। तो हमारे पास 2 मुद्दा था, एक तो वो प्रिवेंटिव मेजर, और दूसरा बात होता है कि वैक्सीनेशन कैसे हो पाएगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। तो हमने शुरू किया, अवेयरनेस प्रोग्राम से शुरू किया, क्योंकि ये तो बड़ा नई बीमारी थी, बीमारी के बारे में लोगों को अच्छे से बहुत जानकारी देना था। तो जो था उसको हम जिंगल से, डिस्कशन से उसको हम कराते थे, अवेयरनेस कराते थे, थ्रू डिस्कशन भी कराते थे उससे हम। तो लोगों के पास थोड़ा अवेयरनेस कैसे पहुंचाएगा इसके बारे में करते थे। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन किया जाएगा, क्यों मेंटेन किया जाएगा, ये बारे में भी करते थे। क्योंकि हम देखते थे वहाँ पर जो साप्ताहिक हाट लगता था, वीकली मार्केट जो लगता था, उसमें बहुत काफी लोग आते थे सब्जी वगैरह लेने के लिए, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग होता नहीं था, मास्क भी पहनते नहीं थे लोग, और हैंड वॉशिंग भी ठीक से करते नहीं थे। तो उसके बारे में हम लोग भी अवेयरनेस शुरू किया, रेडियो से, जिंगल से, डिस्कशन से, गाना से। तो डिफरेंट जो मीडिया है, हमारा जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट से हम उसको किया करते थे। और उसमें हम लोग किए कि कहाँ होता है सिम्टम्स, क्या होता है, उसको देखें और उसके ऊपर बहुत ज्यादा करें। तो इसमें हम बहुत सारा जो लिए हेल्प लिए, उससे वो डॉक्टर जो हेल्थ पर्सनल थे, वो लोग का जो बातें थी, वो बात भी हम दिए। और गवर्नमेंट INPR इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट जो है ओडिशा का, INPR, उससे भी कुछ मिलता था हमें मदद, और जिंगल वगैरह मिलता था बजाने के लिए, उसको भी हम बजाए। तो जो टेक्निकल पर्सन होते हैं, डॉक्टर एंड ऑल दिस टेक्निकल पर्सन ऑफ द मेडिकल, वो भी अपना जो बात रखते थे, वो लोगों तक पहुंचता था। क्योंकि लोग पहले तो लोग बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थे कि कम्युनिटी रेडियो में क्या बताएंगे, उसको हम सुन के क्या करेंगे। लेकिन जब उनको डॉक्टर की जब बात आई और वो लोग जब बोलने लगे, और हम पूरा ऑथेंटिक मैसेज जब उनको देने लगे, और वही ऑथेंटिक मैसेज टीवी में भी आती थी, वही ऑथेंटिक मैसेज लिफलेट, पोस्टर में भी आती थी, तो लोग बिलीव करना शुरू किए। और वो हमेशा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यानी रेडियो स्वराज के ऊपर डिपेंडेंट थे। मैं एक बात बताना भूल गया कि हमारा जो इलाका है वो पूरा मफसल इलाका है, यानी जो रिमोट एरिया है, और उसमें ट्राइबल दलित पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, जिसके साथ काम करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम जब ये अवेयरनेस काम किए, और जिसको प्रॉब्लम होता था उसको बोलते थे कि नहीं, जल्दी जाओ, उसको टेस्ट कराओ, हॉस्पिटलाइज करो, तो उससे तुम बच सकते हो, मौत नहीं आएगा, इतने जल्दी बच सकते हो उससे, तो उसका ट्रीटमेंट चालू करना है। तो ये बात लोगों के समझ में ठीक से आती नहीं थी। क्यों कि हम जब जिंगल बजाते थे, हम जब रेडियो में टॉक देते थे, तो उसका जो लिमिटेशन टाइम था,
2 मिनट 3 मिनट 50 सेकेंड, वो उसमें लोग ठीक से समझ नहीं पाते थे वो चीज को। तो इसलिए हमने बोला कि नहीं, उसका आउटरीच प्रोग्राम होना चाहिए, नैरो कास्टिंग प्रोग्राम होना चाहिए। तो नैरो कास्टिंग में हम उसका साइंटिफिक मेथड क्या होता है, मान लीजिए एक सवाल आया कि हम मास्क क्यों पहनेंगे, उससे दम फूलता है, उसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। तो उसका जो साइंटिफिक मेथड होता है, हम नैरो कास्टिंग जब आउटरीच प्रोग्राम करते थे, हम सभी गाँव को जाते थे। इसलिए थैंक्स टू आवर एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने बोला कि नहीं आप वॉलंटियर भी लगा सकते हो, हम 20 वॉलंटियर ठीक करें और वॉलंटियर को ट्रेनिंग भी हम दिए, मेडिकल लोग भी आए थे वो ट्रेनिंग में, और उनको एक आइडेंटिटी कार्ड भी इशू किए एडमिनिस्ट्रेशन कि उनको और रुकावट न हो, वो गांव को जा पाएंगे, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारा रुकावट थी, गांव के सब लोगों को छोड़ते नहीं थे, वो जाके इंफॉर्मेशन कलेक्शन करेंगे, इसलिए उनको कोई चांस ही नहीं था। तो उनको आइडेंटिटी कार्ड मिला था, और वो आइडेंटिफाइड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मिला था वो कार्ड, ताकि वो एक्सेसिबल हो सके लोगों के पास, लोग उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो वो काम जब चला नैरो कास्टिंग में, जब हम उनको विस्तार से पता है चीज, तो लोगों को समझ में आ गया कि ये क्यों करना है। तो ये जो हमारा मकसद था कि प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे बहुत अच्छे से आएगा, वो प्रिवेंटिव मेजर्स भी लोग ठीक से पालन किए। तो उसके बाद हम देखे जी, कंटिन्यू कीजिए, फिनिश कर लीजिए। तो उसके बाद हम देखे कि नहीं, कुछ डायरेक्ट एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में लोगों काम पे नहीं जाते थे, लोगों को काम पे कोई बुलाता नहीं था, तो इसलिए लोगों के पास तो परचेजिंग पावर भी नहीं था, वो राशन बोले या करे। सरकार तो कुछ राशन मुफ्त में देती थी, लेकिन उसमें उनकी गुजारा नहीं चलती थी। तो इसके लिए हम लोग भी कुछ कोशिश किए, कुछ फंड मोबिलाइज करे, उनको डिस्ट्रीब्यूशन करे, राशन डिस्ट्रीब्यूशन करे, उनको सोप, मास्क, हैंड वॉश, ये सब उनको भी हम कुछ मोबिलाइज करें फंड, और उसको उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, वो तो उनकी बहुत काम में आई। और ये जो वॉलंटियर लोग हमारे थे 20 लोग, वो लोग भी जाके लोगों के साथ पूरा काम करते थे। और गवर्नमेंट उसी टाइम में, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने कुकिंग राइस, जो कुक्ड फूड है, उसको भी थ्रो पंचायत देने के लिए भी कुछ व्यवस्था किए थे, लेकिन उसमें सभी लोगों के पास वो पहुंच नहीं पाता था। तो इसलिए हमारे जो वॉलंटियर थे, वो वॉलंटियर उसको मॉनिटरिंग करते थे कि लोगों के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। वो वॉलंटियर हम लोग को रिपोर्ट करते थे, और वो रिपोर्ट हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को भेजते थे। तो वो जो मॉनिटरिंग सिस्टम था, वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो गया, और सभी लोग, जो लोग नीडी थे, उनके पास वो राशन पहुंचा, ड्राई राशन भी पहुंचा और कुक्ड फूड भी उनके पास पहुंचा। वो उनका बहुत ये हो गया। तो उसमें और एक चीज था कि, क्योंकि मेरे पास एक अगला सवाल भी है। तो आप सबकी कहानियां सुन के उम्मीद है कि यहाँ पे जो स्थित रेडियो स्टेशन सारे, यहाँ पे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो प्रेरित हुए होंगे और खुद उनकी कहानियां उनको याद हुई होंगी। So I'm sure that hearing all your inspiring stories has inspired many of the stations here to remember their own stories and also told them some things that they can do. But उसी बात पे अभी जो हमने किया है, अब लगभग 2 साल होने को है जब से कोविड हमारी जिंदगी में आया, और हमसे जूझते हुए आए, किसी न किसी तरीके से हमने अपना प्रक्रिया जारी रखा है। It's now been nearly 2 years that we have been facing corona, and all of us have kept our stations on air despite we have managed somehow. इसमें हमें सीख क्या मिली है? अगर मैं आपसे पूछूं, एक चीज बताइए जो आज के दिन फिर से ऐसा महामारी आया तो आप अपनी प्रक्रिया में बदलेंगे ताकि आप इससे बेटर डील कर पाए, तो वो एक चीज क्या होगा? आरती? ऐसी एक चीज जो हम अपनी प्रक्रिया में बदलाव लाए, वो हमने इस थर्ड वेव में भी सोचा। हमने पिछले फर्स्ट वेव में भी और सेकंड वेव में भी सोचा, ये किया कि एक ही व्यक्ति स्टेशन कुछ, लेकिन अब हमें ये हम सभी लोगों को मतलब मिलके काम करना चाहिए, और कुछ ऐसी टेक्निक खोजनी चाहिए या देखनी चाहिए तो हम घर में रहकर उसको आगे ला सकते। फोन हमारे पास होता है, लेकिन फोन की वो क्वालिटी नहीं होती है कि हम अच्छे से रिकॉर्डिंग कर पाए, मिक्सिंग कर पाए। हाँ, हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं, लेकिन लैपटॉप्स में भी इतना अच्छे से काम नहीं हो पाता है, स्टूडियो नहीं हो पाता है, या माइक हमारे पास अवेलेबल सही से नहीं हो पाता है। तो मतलब कुछ ऐसी टेक्निक हो जिससे हम घर बैठे ब्रॉडकास्ट कर सकें। मुझे नहीं पता जो कमर्शियल रेडियो होते हैं उसमें क्या होता है, और शायद वो घर, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में हमने कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे देखा भी था मैंने कि जो कमर्शियल रेडियो के आरजे थे वो अपने घर में बैठ के ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। तो कुछ ऐसी टेक्निक हो जो
कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए भी हो और वो घर में बैठ के भी कर सके अगर फॉर फ्यूचर कभी ऐसा होता है। और एक और चीज जो कि सरकार से थोड़ा सा ये रहता है कि भाई सरकार अक्सर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देती है कि जिस तरह से एसओपी जारी होती है, क्योंकि पिछले एक पहली मीटिंग भी हमने की थी, तो उस दौरान उत्तराखंड में जितने भी रेडियो स्टेशन है मैंने सबसे बात की, तो ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हमें वो वैल्यू नहीं मिल पाती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया को मिलती है। एसओपी आती है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को मिल जाती है लेकिन कम्युनिटी रेडियो को नहीं मिलती है। और जो ये फ्रंटलाइन वर्कर का एक वो मिला कि टीकाकरण सबको फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा और आपके स्वास्थ्य कर्मियों को लगा, लेकिन क्या मीडिया कर्मी फ्रंटलाइन वर्कर नहीं थे क्या? वो भी तो अपनी जान जोखिम में डाल के और लोगों के बीच में बात करके क्या शहर का क्या गांव का माहौल है वो सारी चीजें कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कम्युनिटी रेडियो को भी उस तरह का एक मतलब दर्जा मिल सके। जैसे आपने सुना अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोगों का तजुर्बा रहा है। जैसे फादर बीजो ने कहा केरला में उनको वो महत्व मिला, बल्कि वैक्सीनेशन में भी उनको प्राथमिकता मिला। तो उत्तराखंड में नहीं हो पाया, इसके लिए एक तरीका ढूंढना चाहिए ताकि सामुदायिक रेडियो मेरे ख्याल से हर जगह एक ही जैसे ट्रीट किए जाए और मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे ही ट्रीट किए जाए। बट लेट मी कम टू यू फादर बीजो ऑन दैट काउंट, बेस्ड ऑन the fact that we have managed to survive, make it through this tough time, if there was one thing that you could change in what you did, one improvement you could make, what would that be? That is actually very good. See, in the beginning or in the usual times, some of the people, including me, may be thinking that if I'm not there, the radio may not be there. So that thinking has been taken out because each person is important. At the same time, no one is important. Same thing, lot of people came forward from the general public to do some programs. Maybe the first time that we could source more than 25 volunteers for the program production. At the same time, all people were well equipped to do even the station managing and the technical section and other all the reporting section and everything has to be done. But the thing was that we didn't have enough technical equipments. That was really a difficult situation. Then we had to buy some laptops, some records, and even the people that we are here may not have that much MB pack or better mobiles and all. In that situation, that was really horrible, and we had to travel a lot at the same time. And there was exception for all the staff members from our radio station that we could walk everywhere. We could even during lockdown we had a pass with us, so that there was no problem for us to travel around. But the thing was that we had to study for some time all kind of technical and editing and all other things also. But by that time, all understood that we could do, that means even a 2-3 person can manage radio station at a very, very good manner. That was a great study for us. Excellent. कृपाशंकर जी, अगर एक चीज आप अपने प्रक्रिया में या आपका इस चुनौती का सामना करने में आप बदल सकते थे, तो आप क्या बदलते? मेरा संक्षिप्त उत्तर यही होगा कि जो मदर एनजीओ है जैसे स्मार्ट, यूनिसेफ, भारत सरकार जिस तरह इस कोरोना काल में लगातार हम लोगों को सपोर्ट दिया, गाइडलाइंस दिया, अगर उस तरह का गाइडलाइंस आगे भी मिलेगा तो हम हर तरह के चुनौती से निकल सकते हैं। और साथ में लोगों का भरोसा जो बढ़ा और जिला प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो हम लोगों ने कदम से कदम मिलाकर इस कोरोना काल को, इस बाढ़ के समय को बहुत सीमित कर दिया और लोगों के अंदर जो उत्साह भर दिया, तो आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके अंदर उत्साह है तो आर्थिक जरूरत कहीं नहीं पड़ती है। जिसके लिए आप काम करते हैं वह सहयोग के लिए दोनों हाथ खड़े किए रहता है। बहुत धन्यवाद। शफीक जी, आपसे भी मैं यही सवाल करता हूं, आप एक बदलाव अगर लाते अपने प्रक्रिया में या आपके इस चुनौती का सामना करने के तरीके में, तो क्या चाहते कि क्या बदले?
सर अगर मैं बोलना चाहूंगा एक चीज आप बोले तो वो एक चीज का नाम होता है 5T, और फिर आप अगर पूछेंगे 5T क्या होता है तो वो फिर 5 आ जाएगा। तो सॉरी, आई विल गिव यू दैट डिटेल्स। तो पहला चीज है कि टेक्नोलॉजी, 1T इज टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग का जो रेडियो सेंटर है वो टेक्नोलॉजिकली इतना इम्प्रूवाइज नहीं है, तो उसको मैं समझता हूँ अगर उसको थोड़ा इम्प्रूवाइज किया जाए तो ये जो आपदा है ये है, लेकिन डिजास्टर तो होता ही है, और हमारा जो स्टेट है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो एकदम डिजास्टर प्रोन ही है, और मल्टीपल डिजास्टर उसमें आती है, तो उसमें हम बहुत बढ़िया से काम कर पाएंगे। सेकंड थिंग होता है टीम स्पिरिट। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे जो 6 लोग थे जो हमारे वर्कर हैं, वो 6 लोग तो रहते थे वहीं रेडियो स्टेशन में रहते थे, वो जाना आना नहीं करते थे, और उसके साथ जो 20 लोग जुड़ गए, सिर्फ 20 लोग नहीं है, उनके संग हमारा लिसनर ग्रुप भी है गांव में। तो ये सभी को अगर हम जोड़ पाते हैं तो जरूर हम लोग बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, वो एक टीम बन जाएगी। थर्ड थिंग होता है टाइम लिमिट, हमको किस टाइम में क्या करना है, और उसके लिए हमें एकदम सजाग रहना चाहिए, और उसको हम अगर ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वो लोगों का बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे उसको, और लोग उसको अपनाएंगे। और एक टी होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो सरकारी काम जो चलता है और एनजीओ का जो काम यानी रेडियो का जो काम चलता है उसमें एक ट्रांसपेरेंट मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखे कि कोविड सिचुएशन में जैसे सरकार ने बहुत सारा मदद दी, लेकिन वो लोगों के पास पहुंच नहीं पाई बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी। तो उसको अगर हम बढ़ाते हैं, लोगों के साथ बार बार हम चर्चा करते हैं, लोगों को समझाते हैं वो बारे में, तो ये जरूर इम्प्रूव करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन, हम जो चाहते हैं, रेडियो स्वराज जो चाहता है या कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन जो चाहता है, रेडियो का मकसद जो है वो बहुत ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, और लोगों भी जुड़ जाए और लोग बोले कि ये रेडियो स्टेशन हमारी है, हमारे लिए काम करती है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा चीज और कुछ नहीं हो सकता है। तो इससे एक सोशल चेंज भी आएगा। रेडियो स्टेशन खुद नहीं कि ये रेडियो स्टेशन में हम काम करते हैं और उसमें लोगों की इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट पहुंचाते हैं, तो उनका एक समाज का एक बदलाव भी आ सकता है रेडियो स्टेशन में, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। नीतिका और अर्चना जी, क्या हमारे पास कुछ मिनट हैं कुछ सवाल लेने के लिए? अगर कोई हमारे पैनलिस्ट से कुछ पूछना चाहे तो डू वी हैव अ कपल ऑफ मिनट्स फॉर क्वेश्चंस और आर वी राइट एट द एंड ऑफ आवर टाइम? I think we have quite exhausted our time as of now. But अगर किसी का कोई एक सवाल हो, आप you can please put it in the chat box, और ये आपके पास क्वेश्चन एंड आंसर का एक बक्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें डाल सकते हैं, या आप अगर चाहें तो बहुत जल्दी से अगर आपके पास सवाल हो तो, क्योंकि हमारे पास समय अब बहुत सीमित है और मैं प्रोग्राम को और रोकना नहीं चाहूंगा और हमें आगे बढ़ना चाहिए। So if you have a question, please ask immediately, or we will wait one moment to see if there are any questions. नहीं तो फिर आप इन सबको तो जानते ही हैं और आप इनसे कभी भी बात कर सकते हैं जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं। प्लीज इनसे संपर्क में रहिए। You know all the people who are in this panel, all of you are familiar with each other. Please do stay in touch with each other at this very critical time to ask questions and to find out how they dealt with the challenges that I'm sure all of you have faced, so that we can learn from each other and so that we can do a better job. That will be better, sir. Yes. All right. So in that case, without further ado, मेरे सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसके लिए समय दिया और हमारे साथ अपनी बातें शेयर की, हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब आगे बढ़ते हुए इतना ही हौसला दिखाएंगे और इतना ही रेजिलियंस और इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे आगे बढ़ते हुए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सत्र को हम यहीं खत्म करते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड बैक टू यू नीतिका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच रामकृष्णन सर, एंड थैंक यू टू ऑल द पैनलिस्ट। आप सबने जो सब बातचीत किया, जो हमें बताया, हमारे यहाँ पर जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बहुत ज़रूरी है। हम सबको भी सीखने को आपसे बहुत कुछ मिला, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।